Assalamu alaikum students, welcome to the lecture number 36 for the subject of Introduction to Information Technology. In today's lecture, we will discuss different practical tasks related to Microsoft PowerPoint. So here are a few objectives of this lecture. First of all, we will see the purpose of Microsoft PowerPoint. Then we see the difference between the slides, notes and sections. Then there are different ribbons in Microsoft PowerPoint. We will see their working, and then we will see how we can use animations. Now, what is the purpose of Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint is used to create PowerPoint slides, and you can play these slides on big screens like LCD TVs and multimedia projectors for your audience. A slide is basically used to create short notes about a topic, and you can have a number of slides related to different topics. Now Microsoft Office 2013 uses the .pptx format, while the Office version 2003 or 97 used .ppt extension. So the extension for Microsoft Office is .pptx. Now a PowerPoint is not like a book or not like a notes, but it provides quick recap about different things. We can write important points to remember, so that when we are discussing any topic, we don't get carried away and each and every point is right in front of our eyes. A presenter normally sees these points and talks about this point in detail. For example, I am just seeing short points on the purpose, but I am explaining each and every point in detail so that you people can have a better look. Now, what is the advantage of PowerPoint to the audience? The audience listening to a lecture or a topic is also aware of the things they are looking into. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये स्लाइड देख रहे हैं तो आपको पता है कि हम इस टाइम पर्पज़ की स्लाइड डिस्कस कर रहे हैं और इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस कर रहे हैं कि इस पावर पॉइंट का हमें इन द लॉन्ग रन क्या फ़ायदा है. तो इसका प्रेजेंटर को भी फ़ायदा है और जो प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं उनको भी पावर पॉइंट का फ़ायदा है, क्योंकि चीज़ें याद रहेंगी, उन्हें अपने नोट्स बनाने में फ़ायदेमंद होंगी. नाउ पावर पॉइंट इज़ यूज्ड इन बिजनेस प्रेजेंटेशंस, जिसमें आप सेल्स टारगेट्स और फिर अपने प्रॉफिट, इनकम, उसके और फाइनेंशियल्स के लिए अपने मैनेजर्स को ब्रीफ करते हैं, उसमें यूज़ होती हैं. यूनिवर्सिटी लेक्चर्स में यूज़ होती हैं. स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंटेशन में इनको यूज़ करते हैं. और इसी तरह ये जो मेडिकल रैप हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लोग हैं, ये किसी भी डॉक्टर्स की मीटिंग में अपनी मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, उसकी फार्मूला को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका यूजेज और साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए भी पावर पॉइंट स्लाइड्स को यूज़ करते हैं. नाउ हियर इज़ द मेन स्क्रीन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. लेट मी ओपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. नाउ द मेन स्क्रीन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट also has two portions. First one is the recent files, just like Word and Excel, and the second one contains different templates. So here are different templates that you can use, and you can search the templates from online. जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इंटरनेट कनेक्टेड है, तो पावर पॉइंट जो है वो ऑनलाइन टेम्पलेट्स को सर्च कर रहा है. तो आप किसी भी टेम्पलेट को अपने नेचर के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर डायग्राम्स, बिजनेस, एजुकेशन, थीम्स, इन्फोग्राफिक्स, हर चीज़ के रिलेटेड थीम्स हैं. नाउ वी विल गो विथ द ब्लैंक प्रेजेंटेशन. Now this area is known as a slide. This is the main slide. The first slide is known as the main slide. It contains a title and it contains a subtitle like author name or subtopic. Just like I write MS PowerPoint here and I write lecture number 36 here. This is the main slide. अब आप बिल्कुल वर्ड की तरह यू कैन जूम इट इन एंड जूम इट आउट. नाउ वी कैन हैव a number of slides in Microsoft PowerPoint. For this purpose, we will go to the left pane. This left pane has a number of slides. So whenever I right click, I see two things. One is the new slide and other one is the section. To create a slide, I will click the button new slide. Now this is another slide. This slide has two things. One is the
title of slide, and the other one is the contents. And slide contents are in the form of bullets. You can go with sub bullets as well. इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्लाइड के कंटेंट्स जो है वो हमेशा बुलेट्स में हों. नाउ दिस इज़ द फायर रिबन. इट हैज़ सेम ऑप्शंस. इन्फो पासवर्ड आप इसको लगा लें, न्यू स्लाइड पे चले जाएं, किसी रिसेंट स्लाइड को ओपन कर लें, स्लाइड्स को सेव कर लें, स्लाइड्स को प्रिंट कर लें, एक्सपोर्ट कर लें. तो ये सारी वही ऑप्शंस हैं जो हमने वर्ड एक्सेल में बार बार देखी. नाउ हियर इज़ द होम रिबन. यू हैव द फॉर्मेट पेंटर. It works in a similar way that it does in Word. Then we have the layout. We can change the layout of a slide. Now this is the layout. If I go to this, I can create this layout. So basically 2-column layout. Similarly, I can go with this title only. When I will use the title only, these type of slides are used for placing the pictures. Similarly, you can click on new to create a new slide. अब यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन हैं. टाइटल एंड कंटेंट है, या टाइटल स्लाइड है, या सेक्शन हेडर है, या टू कंटेंट है, या कंपैरिजन है. सो आप किसी भी स्लाइड टाइप को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं. देन वी कैन डिफाइन सेक्शन एज वेल. नाउ दिस इज सेक्शन. यू कैन रीनेम इट सेक्शन. इन ईच सेक्शन you can, for example, you can place different slides. For example, this section is about input devices. So all the subsequent slides will be about input devices, and then I can create another section and I can title it output devices. So sections are used to manage your slides, and you can carefully design the layout and manage your slides for proper understanding and proper readability. Then these are the different views. ये आपके सामने normal view है. You have two sections. The left hand side shows the number of slides, and the right hand section shows a specific slide. And this is the slide sorter. Here you will see only slides. You will not see any other things, and you will see the sections also. Then we have a read mode. In read mode you cannot change anything. And then we have a slideshow. Whenever you open a slideshow, the slide comes in a full screen. So this is our basic PowerPoint interface, and we normally work in normal view. Then here is another thing that is known as notes. For each slide you can write different notes. These are the additional things about a slide. So जो चीज़ आप स्लाइड में ऐड ना करना चाहें, स्लाइड में फॉर एग्जांपल हम मेन पॉइंट ऐड करते हैं यहाँ पर इनपुट डिवाइस. यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख देते हैं एंटर्स वैरायटी ऑफ डाटा इनटू कंप्यूटर. बट इन द नोट्स वी कैन राइट न्यूमेरिक डाटा, alphabetic data, and then image data, then video data and audio data. तो नोट्स में हम एडिशनल चीज़ें लिख सकते हैं किसी स्लाइड्स के बारे में. तो जब भी कोई प्रेजेंटर स्लाइड्स को प्ले करेगा तो वो सारी चीज़ें देख सकता है, उसे नोट्स भी नज़र आएंगे और उसे स्लाइड्स भी नज़र आएंगी, तो वो सारी चीज़ें इजीली एक्सप्लेन कर सकता है. एंड नेक्स्ट वी हैव द सेम फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज. वी कैन increase the font size, decrease the font size. We have bold, italic, underline, and then we have a text shadow. This is something new in Microsoft PowerPoint. And then we have a character spacing. We can go with this character spacing, यानी आप individual characters के दरमियान space को change कर सकते हैं. For example, हम यहाँ पर लिख देते हैं 10. So this is our character spacing. So these are used to make slides attractive. Then we have the same thing जो हमने वर्ड में डिस्कस की थी कि सेंटेंस केस कर लें, लोअर केस कर लें, अपर केस कर लें, कैपिटलाइज कर लें या फिर टॉगल कर लें. So ये सेम है. Then we have a font color. Then we have left alignment, center alignment, right alignment and justify. Then we have the bullets. यहाँ से हम नंबर्ड बुलेट्स कर लें
या अनऑर्डर्ड बुलेट्स कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। देन वी हैव लाइन स्पेसिंग, फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर सेकंड line, we can use the line spacing option to increase the difference between the lines. Then we have a text direction, we can provide the text direction as this, we can rotate it 270 degree and we can provide the text direction as well. So you can go for more options from here. Then we have align text, we can align the text top of the bar, we can align the text right in the middle and or right at the bottom. So ये आप options इसमें कर सकते हैं. We can also convert the text into smart art. We will simply select the text and move to the button convert into smart art and we can select any shape to convert it into smart art. तो जैसे आपने smart art create की, यहाँ पर फिर वही आपके पास bunch of options आ गई, जिन ऑप्शंस को आप यूज़ करके स्लाइड्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप इनकी शेप्स चेंज कर सकते हैं, आप इनको किसी भी फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली द स्मार्ट आर्ट. एंड देन वी हैव द ड्राइंग. यू कैन यूज़ दिस टू क्रिएट ड्राइंग्स, जैसे हमने वर्ड में क्रिएट की थी. फिर इसी तरह हमारे पास क्विक स्टाइल्स हैं. फॉर एग्जांपल हम इस पर क्लिक करें, हम इसके क्विक स्टाइल को चेंज कर सकते हैं. हम इस एरो के क्विक स्टाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं. सिमिलरली वी कैन ब्रिंग इट टू फ्रंट एंड वी कैन चेंज द शेप आउटलाइन एज वेल. जैसे मैं इसको ब्लू कलर कर दूँ तो अगर हम इसको ट्रैक करें यू विल सी ए ब्लू लाइन. सिमिलरली वी कैन गो फॉर द शेडो इफ़ेक्ट्स एज वेल. शेडो इफ़ेक्ट्स इससे बन सकते हैं. फिर आप शेप फिल को चेंज कर सकते हैं यहाँ से किसी भी कलर में. और फाइंड एंड रिप्लेस के फंक्शंस हैं. सो दिस वाज द होम रिबन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अलॉन्ग विद द फाइल मेन्यू. नेक्स्ट वी गो टू द इंसर्ट मेन्यू एंड सी डिफरेंट ऑप्शंस देयर. नाउ इन इंसर्ट वी कैन क्रिएट a new table in the same way जैसे हम वर्ड में यूज़ करते थे. सो जैसे ही हमने टेबल क्रिएट किया, इट शोज़ अस ए नंबर ऑफ़ ऑप्शंस. हम टेबल की लेआउट चेंज कर सकते हैं, हम टेबल की शेडिंग को चेंज कर सकते हैं, हम किसी कंप्लीट रो की शेडिंग को चेंज कर सकते हैं. फिर इसके बाद हम 3D इफ़ेक्ट किसी टेबल की रो पे लगा सकते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली वर्किंग विद द tables. And then we can insert picture, online picture, we can insert the screenshot जैसे हमने वर्ड में देखा था. We can insert a photo album, we can insert different shapes जैसे मैंने आपको पहले बताया. उसके बाद हम स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर इंसर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई गो टू हेडर एंड फुटर and click on slide number and click on footer and write here PPT practical. So when I apply to all, you can see the page number and you can see the footer also. Similarly, we can go to the header and update the date and time so that we can check the date time as well. सो ये आपके पास हेडर एंड फुटर हैं. देन वी हैव वर्ड आर्ट, वी कैन यूज़ एनी टेक्स्ट. ये भी वर्ड की तरह सेम है. देन वी हैव द स्लाइड नंबरिंग एज वेल. वी कैन राइट इक्वेशंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. इफ़ यू हैव मैथमेटिकल बैकग्राउंड एंड यू वांट टू ऐड मैथमेटिकल इक्वेशंस, यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन. जैसे मैंने ये इक्वेशन ऐड कर दी, जैसे वर्ड में हमने देखा था इक्वेशंस को ऐड करना. देन वी कैन ऐड सिम्बल्स एज वेल. हियर आर डिफरेंट सिम्बल्स, यू कैन ऐड सिम्बल्स एज वेल. तो आप यहाँ पर देखें तो ये हमने सिम्बल भी ऐड कर दिए. देन इंसर्ट में आप वीडियोस ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई गो टू वीडियो ऑन माय पीसी एंड आई गो टू वीडियोस एंड हियर आर सैम्पल वीडियोस. सो ये मैंने वीडियो पावर पॉइंट स्लाइड में ऐड कर दी. मैं इस वीडियो को प्ले भी कर सकता हूँ
यानी अगर आप किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं तो आप उसकी वीडियो को भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और उस वीडियो को आप यहाँ पर रन कर सकते हैं. सो व्हेन एवर आई इंसर्टेड वीडियो आई सॉ अ डिफरेंट नंबर ऑफ ऑप्शंस. आई कैन चेंज द फ्रेम ऑफ वीडियो. जैसे मैंने ये चेंज किया, मैं वीडियो का फ्रेम चेंज कर सकता हूँ. आई कैन चेंज द वीडियो शेप एज वेल. I can apply borders to video shape. I can apply glow to video as well. So इसमें भी आपको वीडियोस नज़र आएंगी, लेकिन अब आपके पास फ्रेम है जिसमें डिफरेंट किस्म की आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं. सो दिस इज़ द बेसिक वर्किंग विद वीडियोस एंड यू कैन गो फॉर कलर कलेक्शन एज वेल. यू कैन, यानी अब जो आप कलर्स अप्लाई करेंगे वो पूरी वीडियोस पर अप्लाई हो जाएंगे. सिमिलरली यू कैन चेंज इट टू ब्लैक एंड वाइट. सो आप किसी कलर्ड वीडियो को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं. देन वी हैव एन ऑप्शन ऑडियो. यू कैन ऑल्सो इंसर्ट ऑडियो फ्रॉम योर कंप्यूटर इन द सेम वे और यू कैन रिकॉर्ड योर ऑडियो एज वेल. तो ये चीज़ें एडिशनल हैं जो आप प्ले कर सकते हैं. सो दिस वाज आवर इंसर्ट रिबन. And then we have a design ribbon. Now let me go to the design ribbon and see what do we have. अब हमने blank slide create की थी. अब अगर यहाँ पर देखें so you can see different themes here. So I can apply any theme. For example, I click here. Now you can clearly see theme has been applied onto slides. You can change the theme as well. ये main theme है, ये इसके variants हैं. For example, this is the main theme. And here are different variants of this theme. Similarly, this is a theme and here are different variants of the theme. So each theme has its own variants. But let me change it to default. You can also format the background. For example, I go to background and I go for gradient fill. मैं यहाँ से gradient को change कर सकता हूँ. You can see that slide is filled with 2 colors. Similarly, I can go to this slide and format background. I can fill it with the texture. So this is the texture. I can fill it with a pattern. So here is the pattern. So आप slides की backgrounds को भी fill कर सकते हैं. So this is overall layout of your slide. But keep remembering कि एक टाइम पर आप एक स्लाइड को ही कस्टमाइज़ कर सकते हैं. थीम आप पूरी स्लाइड्स पर अप्लाई कर सकते हैं, पूरी फाइल पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिज़ाइंस की बात करें तो डिज़ाइन एक टाइम पर सिर्फ एक स्लाइड पर अप्लाई होंगे. सो इफ़ यू वांट टू वर्क विद कस्टमाइजेशन और स्लाइड बैकग्राउंड, यू हैव टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ ईच इंडिविजुअल स्लाइड सेपरेटली. नेक्स्ट वी हैव द ट्रांजिशंस मेन्यू. PowerPoint has an element of transitions. For example, this is the transition and if I click this shape, now this is the opening of your slide. तो मैं आप slide view पर जाता हूँ तो आप देखें कि ये आपने एनिमेशन लगाई, ये आपकी स्लाइड इस तरह से ओपन होगी, लेकिन ये आपने मेन स्लाइड पर अप्लाई किया इसलिए मेन स्लाइड ही इस तरह ओपन होगी. फॉर एग्जांपल मैं इस स्लाइड पर ये फंक्शन लगा देता हूँ. नाउ व्हाट विल हैपन, now what will happen, this slide is opened और जैसे मैंने की प्रेस की सेकंड स्लाइड आपके सामने रिवील हुई. इसी तरह मैं थर्ड स्लाइड पर जाता हूँ और मैं इस पर कर्टन्स इफेक्ट लगा देता हूँ. now what will happen, I open the slides, PowerPoint एक एनिमेशन के साथ ओपन हुई, सेकंड स्लाइड सेकंड ट्रांजिशन के साथ ओपन हुई और थर्ड स्लाइड जो है वो कर्टन इफेक्ट के साथ ओपन हुई. तो आप ये डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं इन स्लाइड्स पर लगा सकते हैं. नाउ वी हैव इफेक्ट ऑप्शन एज वेल. यू कैन वर्क विद दीज ऑल्सो. देन वी हैव साउंड्स. यू कैन ऑल्सो प्ले द साउंड्स. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाकर एरो साउंड लगा देता हूँ. नाउ व्हाट विल हैपन, व्हेन आई ओपन द स्लाइड साउंड विल ऑल्सो बी प्लेड. So this is basically our slide transition.
Now the next thing we have is the animation. Now transitions are applied on the slides and animations are applied on each individual text. For example, this is the text. I go to animation and click on random bars. अब हम इसको प्ले करते हैं. हमने स्लाइड प्ले की, ये स्लाइड ट्रांजिशन आई. This is another slide transition. This is another slide transition. And now when I press the button, you will see input devices. So this is basically your animation. आप इस पर और भी कोई एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं. आप इस पर पल्स एनिमेशन अप्लाई कर दें. यहाँ से आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दें. So it will become slow. Now again we will see. Now the slide has opened. तो ये देखें, ये इसकी एनिमेशन की लेंथ मैंने इंक्रीज़ कर दी. सो इस तरह से आप एनिमेशंस के साथ वर्किंग कर सकते हैं. सो आप किसी भी चीज़ पर, किसी भी पिक्चर पर, किसी डायग्राम पर, किसी पर भी आप एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ से आपको बेशुमार एनिमेशंस मिल जाएंगी. जैसे ये आप ये एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं. सो दीज आर डिफरेंट एनिमेशंस एंड यू कैन कन्फिगर कि आप क्लिक करें तो एनिमेशन स्टार्ट हो या प्रीवियस एनिमेशन के साथ स्टार्ट हो. सो व्हेन आई क्लिक आफ्टर प्रीवियस, व्हाट विल हैपन. ये ट्रांजिशन थी, ये मैंने एनिमेशन प्ले की और जैसे ही एनिमेशन ख़त्म होगी इसके बाद ये दूसरी एनिमेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी. नाउ इफ़ आई क्लिक ऑन विद प्रीवियस, व्हाट विल हैपन. मैं इसको ओपन करता हूँ, ये ट्रांजिशन आपके सामने आई. जैसे मैंने की प्रेस की, एनिमेशन स्टार्ट हुई और दोनों एनिमेशन जो हैं वो साइमल्टेनियसली वर्क की. सो इस तरह से आप एनिमेशंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. एंड नाउ वी हैव द स्लाइड शो. In the slideshow we have different options. We can start from beginning. So if I start from beginning, slideshow starts from the first slide. If I click on the current slide, the slideshow starts from the current slide. We can also present online. You can also use custom slideshow. You can also record your slideshow from the beginning or from the current slide. So this is basically the slideshow menu. And the next we have the review option. So if you go to review, you will see a number of options. This is your translation, this is your spelling checker, this is your language settings, and these are your comments. You can also add the comment pane. तो जैसे आप comments add करते जाएंगे वो आते जाएंगे. And next we have the view. You have the normal view. You have the outline view. अब आप देखें कि आपको स्लाइड भी नज़र आ रही है और आउटलाइन भी नज़र आ रही है. You can also slide sorter. You can also see the notes page. You can also go to the reading view. You can go to the slide master. So these are the basic functions of Microsoft PowerPoint. और बाकी सेव, ओपन और बाकी चीज़ों का तरीका सेम है. आप इनको परफॉर्म करके देखें और आप इनको ईजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे.